Hello everyone, here is the detailed notification of Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited. So yesterday only we have completed the short notification, we have seen the short notification, and today they have released the detailed notification for the post, right? So we already discussed that this is a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. You can apply for the position from 10th of August to 31st of August 2025 here, right? So here you can see that the vacancy is basically for the deputy manager and for the process assistant grade A trainee. Okay, deputy manager and the process assistant grade A trainee. The dates are 10th of August to 31st. So you can start applying for this particular examination from 10th of August, right? Last date 31st of August again. Tentative date of the examination will be in September or October. So they haven't announced the date yet. Okay, they will soon announce it. अभी टेंटेटिव क्या है आपका एग्जामिनेशन होने वाला है सितंबर या अक्टूबर के अंदर. ओके, so applicants who do not fulfill the age criteria, minimum qualification and etc related to the thing. So आपका लास्ट डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन विच इज 31st of August तक आपका अगर कंप्लीट है सारे क्राइटेरिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो. पोस्ट में आपको बता देता हूं, यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर की जो पोस्ट है बहुत सारी पोस्ट है. हालांकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड के अंदर भी देयर आर 9 vacancies and in process assistant grade A trainee there are 64 vacancies. There are some other vacancies as well, like deputy manager printing engineering background, electrical engineering background and computer science background, right? So 10 vacancies आपकी printing background के अंदर है, electrical engineering में 3 है और computer science background के अंदर 2 vacancies are there. However, here in this particular video we'll be specifically discussing about the general administration background and प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ए बैकग्राउंड डिग्री. प्रोसेस असिस्टेंट की जो ट्रेनिंग डिग्री है ग्रेड 1 के लिए अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे पोस्ट कोड देख रखे हैं, आप देख सकते हो अलग अलग पोजीशंस का पोस्ट कोड है. फॉर प्रोसेस असिस्टेंट द पोस्ट कोड इज 5 एंड फॉर डेप्यूटी मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द पोस्ट कोड इज 4, राइट? We can see the qualification and experience. So there are 2 requirements. You need to have a qualification and you need to have experience as well if you are going ahead for the deputy manager post. Okay, so post A के अंदर आप देख सकते हो B.Tech मांगा है 60% के साथ में. इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए भी है. अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो इस ऑर्गेनाइजेशन के, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द आई कैन से प्रमोशन, राइट? सो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर जो आपके पोस्ट 3 के लिए उनके पास वापस B.Tech होनी चाहिए. अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट्स की, राइट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट की जो कि कोड 3 के अंदर आ रहा था, यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट. तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके अंदर आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट के अंदर होने चाहिए. विथ मतलब ये ए और बी में से एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए. सो ग्रेजुएशन विद 60% प्लस मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट. सो यू नीड टू हैव मास्टर्स डिग्री इन ईदर मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी अगर आपके पास है इन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, दैट विल आल्सो वर्क. ओके, दैट विल आल्सो वर्क. सो यहाँ पे ग्रेजुएशन तो चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री चाहिए. इफ यू डोंट हैव द मास्टर डिग्री, इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा विल आल्सो बी fine. However, it needs to be in management, business administration, personal management and material management. And you need to have experience as well because this is a deputy manager level profile. So you need to have experience as well for at least 2 years. Right? Post qualification experience आपके पास होना चाहिए 2 year का, working in a reputed production or manufacturing organization. Okay? So 2 years का work experience is also required here. You need to have graduation 60%, master's degree in management, business administration, personal material management and post qualification experience of at least 2 years in production or manufacturing unit, right? Internal candidates के लिए भी same requirements दे रखी है. However, for internal candidates, if you are working with the existing company, you are already in service with this particular organization for at least 2 years, then definitely you can apply. If I talk about the post of assistant, process assistant grade A trainee post, which is having the post code of 5, you should be having a diploma in printing or mechanical engineering or electrical engineering. Diploma भी चलेगा printing में, mechanical engineering में, electrical engineering में, electronics engineering के अंदर, chemical engineering,
with a minimum of 55% marks in the aggregate. So you need to have a diploma in these fields, in any of these fields, plus you need to have 55% marks in the diploma, right? They should be having at least 1 year post qualification experience. ये diploma कर लिया काफी नहीं है, diploma plus work ex of at least 1 year. At least 1 year का working experience भी होना चाहिए आपके पास in the following field of production and maintenance of printing press related pre-press activity, printing related activity, pulp and paper, ink और प्रिंटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी को पता है ये प्रिंटिंग प्रेस है एक तरह की, यहाँ पे नोट्स प्रिंट होते हैं, राइट? आरबीआई के नोट्स प्रिंट होते हैं, हमारी करेंसीज प्रिंट होती है, डेफिनेटली आपके लिए रिलेवेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर यू नीड टू हैव पास्ड द आईटीआई और एनटीसी और एनएसी इन द ट्रेड्स ऑफ लेटर प्रेस, ऑफसेट, प्लेट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट्स, मैकेनिक, फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशन विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर आपने ये वाले एग्जामिनेशन पास किया हो विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है? तो या तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए इन फील्ड्स के अंदर, प्लस आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने इनके अंदर इन डिप्लोमाज में, इन सर्टिफिकेशंस के अंदर 55% आपके हो, प्लस आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 2 इयर्स का इन एनी ऑफ द फील्ड। वापस वही फील्ड आपको दे रखे हैं, उसके अंदर आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, ठीक है? हाउएवर एनएसी, अगर आपने एनएसी का कर रखा है तो फिर उसके केस के अंदर 1 year अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द अबाउट फील्ड एंड इंडस्ट्री विल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन एज 2 year ओनली। अगर आपने उसके अंदर एनएसी के अंदर कर रखा है तो 1 year अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी ऑल्सो बी काउंटेड एज फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया बेसिकली। ओके, सो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया बहुत सी सॉर्टेड है। एज की बात करूं तो इफ यू आर एमिंग फॉर डिप्यूटी मैनेजर इट शुड नॉट बी मोर देन 31 years। ओके, योर एज शुड नॉट बी मोर देन 31 years। इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। एंड फॉर द प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ए ट्रेनी पोस्ट मिनिमम एज शुड बी एटलीस्ट 18 years and you should not be having a age of more than 28 years. Okay, that's the age criteria. 18 से 28 is the age criteria for deputy manager, 31 years is the age criteria. एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे गिवन है डिप्यूटी मैनेजर के केस में और प्रोसेस असिस्टेंट के केस के अंदर, आप दोनों में देख सकते हो। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो डिप्यूटी मैनेजर का सीटीसी यहाँ पे रहने वाला है 19 lakhs पर एनम का। बेसिक पे ही आपकी 56,100 होगी पर मंथ। दिस इज द लेवल 10th पे मेट्रिक। डीए और सब मिला के आपका 88,000 समथिंग कुछ हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आपको पर्क्यूसिट्स भी मिलेंगे। योर सीटीसी विल बी 19 lakhs ईयर। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ए विच इज पे लेवल 2 ओनली ऑफ द पे मैट्रिक्स, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ट्रेनिंग होने वाली है, सो यू नीड टू गो ट्रेनिंग। दिस इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यू विल बी गेटिंग अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 24,000 फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्लस in addition to that you will be also getting food vouchers, conveyance allowance etc. अगर आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है so definitely the employee will be placed on probation period of 1 year with a basic salary of 24,500 rupees per month. This is the pay level 2. okay, plus you will be getting the dearness allowance as well. overall आपका जो CTC हो जाएगा, ये तो सिर्फ बेसिक पे 24K की 24,500 की, आपका CTC will be approximately 12 lakhs per annum. okay, अकोमोडेशन डेफिनेटली आपको कंपनी का अकोमोडेशन मिलेगा पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, राइट? सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द डिप्यूटी मैनेजर एंड प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ए ट्रेनी पोस्ट, दोनों ही केस में आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट टू ऑनलाइन, फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी है जो होने वाला है इन द डिप्यूटी मैनेजर पोस्ट। डिप्यूटी मैनेजर में क्या क्या पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में? विल बी गेटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ए अगेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और यहाँ पे इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है? स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट आपका क्या होगा यहाँ पे? बेसिकली यू जस्ट नीड टू स्कोर 50% मार्क्स इन द स्किल टेस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट। ओके, अच्छा, स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। वट एवर यू आर स्कोरिंग इन द एग्जामिनेशन दैट विल मैटर ओके इन द फाइनल सिलेक्शन। स्किल टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे होने वाला है। ओके, अच्छा, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस कंसिस्टिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड
ऑफ द 10th स्टैंडर्ड CBSE, राइट, प्लस जनरल नॉलेज का यहाँ पे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. रिटन एग्जामिनेशन में नो पेनल्टी इज देयर, ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, प्लस 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन इफ यू आर गिविंग डेप्यूटी मैनेजर? रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस. आप देख सकते हो 30 30 20 20 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है. 70 मिनट्स आपको दिए जाएंगे. इंडिविजुअल ड्यूरेशन दे रखा है, 70 टोटल नहीं है. देयर इज अ बाइफर्केशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ए ट्रेनी, अगेन रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग इज देयर हियर, राइट. और प्लस यहाँ पे आपका मैक्सिमम अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, प्लस ड्यूरेशन भी सबका अलग रहेगा. टोटल ड्यूरेशन विल बी 70 मिनट्स. एग्जाम आपका होने वाला है सितंबर में, अक्टूबर में, एग्जैक्ट डेट अभी तक आई नहीं है. कंपनी की वेबसाइट पे आ जाएगी, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है. और ये सारे सेंटर्स हैं जहां पे एग्जाम होने वाला है, राइट. सो ब्रॉडली आपके नोटिफिकेशन में यही सारी चीजें गिवन है. आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया हो, राइट. एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर post, then all the very best, guys. Let us know if you need any guidance from our side. Okay, so thank you so much, guys. Bye bye, take care.